welcome to the channel Education Fever. Today we are going to learn the Earth and the solar system. So I, Om Prakash Mishra, will start the topic. Since the ancient times, people have looked at the shining objects in the sky and wondered, why do some of them twinkle? What holds them up there? This is the question every student's arise. So today we are going to clear all the concepts regarding the Earth and the solar system. So guys, all the subjects which we see in the sky are called heavenly bodies or celestial bodies. Note it down every point as it is very important for the exam purpose. Next, we will see what are these heavenly bodies. The heavenly bodies mainly include the stars, planets, satellites, asteroids, comets and meteors. So guys, what are the stars, planets, satellites, asteroids, comets and meteors? इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट क्या है, एस्टेरॉइड्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, मीटियोर्स क्या है. हम एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द वर्ड यूनिवर्स. ये जो सृष्टि है, द वर्ड यूनिवर्स स्टैंड फॉर एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस. इसका मतलब होता है पूरे स्पेस यानी कि जो अंतरिक्ष है उसके अंदर जो भी आता है, चाहे वो मीटियोर हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, जो कुछ भी आता है, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन स्पेस इज़ नोन एज यूनिवर्स. अब हम आगे चलते हैं. आपने देखा होगा जो वेरियस प्लैनेट्स, सन, ये सब कहाँ रहते हैं. हाँ, स्पेस में तो ये लोग रहते ही हैं, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर टर्म है. हम अपने ये सन और जो सब स्टार्स हैं उसको हम गैलेक्सी में देखते हैं एंड इट इज़ कॉल्ड मिल्की गैलेक्सी. सो गाइस, all our sun and all the stars that you see in sky belong to a galaxy. इसको हिंदी में हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं. एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत खोजा कि दो हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को कैसे मापे. हाउ शुड वी मेजर the distance between the two heavenly bodies? After various research, we got the clue. The unit for measuring the distance between various heavenly bodies is called light year. It's very important, note it down, light year. The next point is that the nearest star to the earth apart from the sun is Proxima Centauri. So this is a very important point. The nearest star to the earth apart from sun is Proxima Centauri. Next we will talk about the sun. अब हम आगे बात करने जा रहे हैं the sun. First point, the sun is the largest member of the solar system. Nothing is bigger than this sun. Every planet is smaller than this sun. Second point, the diameter of the sun is about 109 times greater than the diameter of the earth. The third point, the sun is the main source of heat and light for all forms of life on the earth. ये जो sun है, जो सूर्य है, वो मेन सोर्स है हीट और लाइट के लिए. हम कुछ भी काम करें in the life on the earth, sun plays a very important role in all the forms, whether it should be heat, जो तापमान, whether it should be provides us the light. Fourth point, the average distance of sun from the earth is about 15 crore kilometer. So it's a large distance, the sun from the earth. Fifth point, the gravitational pull of the sun keeps all the members of the solar system together. जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का, वो सारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स को, यानी कि सारे प्लैनेट्स को, सारे एस्टेरॉइड्स को, सारे कॉमेट्स को एक जगह रखती है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्लैनेट्स. देयर आर टोटल 8 planets in the solar system. There are total 8 planets. Note these points. First one is Mercury. Second is Venus. Third is Earth. Fourth is Mars. Fifth is Jupiter. Sixth is Saturn. Seventh is Uranus. And eighth is Neptune. The inner planets
यानी कि जो अंदर की तरफ है, यहाँ पे 4 प्लैनेट्स हैं जो इनर प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। ये 4 प्लैनेट सन के काफ़ी नज़दीक हैं और रॉक्स से बने हैं। इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट्स जो कि बाहर की तरफ से हैं, ये भी 4 हैं। इन चारों का नाम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सो दिस आर द आउटर प्लैनेट्स। The outer planets are also called gas giants. Why they are called gas giants? Because they are made up of gas. So the 4 outer planets are Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, which are made up of gas and also called outer planets. Next we will see our planet where the life exists or where we live, the Earth. The Earth is the 3rd planet from the Sun and 5th largest in the solar system. सन के तीसरे नंबर प्लैनेट यानी कि सन के बाद मरकरी, वेनस और तीसरे पोजीशन पे आते हैं अर्थ एंड 5th लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। ये इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़े हैं। इट्स द लार्जेस्ट अमॉन्ग द इनर प्लैनेट्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्थ इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग इनर प्लैनेट्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द अर्थ इज दैट लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिस पे अभी तक ये पाया गया है कि लाइफ एग्जिस्ट करता है। इट्स ओनली द अर्थ बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। द एटमॉस्फेयर में जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। अर्थ को वाटरी प्लैनेट इसलिए कहते हैं कि पहले देखा गया था कि काफ़ी पोर्शंस जो हैं अर्थ के वो पानी से घिरे हुए हैं। सो दैट्स वाई अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटरी प्लैनेट। जो अर्थ का शेप है, द नेक्स्ट पॉइंट, जो अर्थ का शेप है वो परफेक्ट स्फीयर कभी भी नहीं है। काफ़ी लोगों ने बोला, एरिस्टोटल द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, उन्होंने बोला था कि अर्थ एक स्फीयर है, बट नो, अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। द इक्वेटोरियल डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ अबाउट 44 किलोमीटर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न स्टूडेंट्स Mercury, the first planet, the inner planet, it's also inner planet, and the first planet after the sun in the row is Mercury. Mercury is named after the messenger of Roman gods. It is closest to the sun. जैसे कि मैंने बोला, ठीक सन के बाद मरकरी आते हैं। Next is Venus. Venus is named after the Roman god of love and beauty. It is almost same size as Earth and called Earth's twin. It's a very important point. Venus is the planet which is also called Earth's twin. Note this point, is very important. The 3rd planet, the Mars, is named after the Roman god of war. The color of the planet seems to be red, so it's also known as the red planet. So it's very important, note down, the Mars is also known as red planet. Next we are going to see, students, the planet Jupiter. The Jupiter planet is named after the ruler of Roman gods. A very important point, the second point, the largest planet in the solar system is Jupiter. It's a very important question. Largest planet in solar system is Jupiter. It has 53 known moons. तो जुपिटर के पास 53 known moons है। Then we are going to see Uranus. It's named after the Greek god of sky. Uranus was first discovered in 1781 by William Herschel. It's a very important question. Discovered in 1781 by William Herschel. यूरानस हैज़ रिंग्स अराउंड द इक्वेटर। यूरानस के चारों तरफ, जो इक्वेटर होती है उसके चारों तरफ रिंग्स बनाए हुए हैं, रिंग्स की शेप है, और इट हैज़ 27 नोन मून्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेपच्यून। नेपच्यून का नाम आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी। नेपच्यून का नाम आता है आफ्टर रोमन गॉड ऑफ सी। इसका साइज सिमिलर टू यूरानस है, ये ऑलमोस्ट यूरानस के शेप का ही है। इन दोनों को ट्विन जाइंट्स भी कहा जाता है। किन दोनों को? नेपच्यून और यूरानस इज ऑल्सो नोन एज ट्विन जाइंट्स। और नेपच्यून हैज़ 8 नोन मून्स। नेपच्यून के पास
8 नोन मून्स हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टूडेंट्स द सैटेलाइट्स। क्या है ये सैटेलाइट्स? द वर्ड सैटेलाइट मीन्स एन अटेंडेंट और कंपेनियन। द मून वॉज द ओनली सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम अंटिल 1610। मून एक लौता सैटेलाइट था सोलर सिस्टम में 1610 तक। और आज की बात करें स्टूडेंट्स 2020, मोर देन 100 known satellites. It's more than 100. The two planets in the solar system which do not have satellite are Mercury and Venus. Satellites move around planets from west to east. Very important MCQ. Satellites move around planets from west to east. Next we are going to see students the moon. चांद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। द मून क्या है? मून, द मून इज अ हेवनली बॉडी क्लोजेस्ट टू अर्थ। जो अर्थ के पास सबसे नज़दीक हेवनली बॉडी है, जो अर्थ के एकदम नज़दीक है, वो है मून। जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम अर्थ इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून। ये अर्थ के इतने नज़दीक है फिर भी अभी तक यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रोटेशन एंड वन रिवोल्यूशन इज सेम। ये अपना एक रोटेशन और एक रिवोल्यूशन एक ही टाइम पे कंप्लीट करता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फेजेस ऑफ मून। इन इट्स जर्नी फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून द विजिबल पोर्शन increases and the moon is said to be wax. It's a very important point. जब भी मून न्यू मून से फुल मून की तरफ जाती है तो उनका जो विजिबल पोर्शन होता है वो इंक्रीज करता है, यानी कि हम मून को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख पाते हैं और इस टर्म को कहते हैं इंग्लिश में वैक्स। सेकेंड पॉइंट, इन इट्स जर्नी फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेज एंड इज कॉल्ड वेन। जब मून फुल मून से न्यू मून की तरफ जाता है तो उनका जो विजिबल पोर्शन होता है वो डिक्रीज कर जाता है, यानी कि हम मून को थोड़ा सा कम देखते हैं, जो दूरी से देखते हैं वो कम दिखती है एंड इट इज़ कॉल्ड वेन। द थर्ड पॉइंट, द वेक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द मून इज़ नोन एज फेजेस ऑफ मून। इन दोनों प्रोसेसेस को वेक्सिंग और वेनिंग ये दोनों फेजेस ऑफ मून कहलाते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। ये एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेट लाइक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड्स जो हैं वो बहुत ही छोटे प्लैनेट के रूप में सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो भारी होते हैं वो सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। जो प्लैनेट के शेप में भारी वस्तुएं, शेप उनका स्मॉल ही रहता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। द थर्ड पॉइंट, द ईच एस्टेरॉइड फॉलोज इट्स ओन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये जो एस्टेरॉइड होते हैं वो अपना ही ऑर्बिट फॉलो करते हैं अराउंड द सन। ये किसी के और ऑर्बिट में नहीं जाते, इनका एक अपना पर्टिकुलर ऑर्बिट रहता है और ये उसी को फॉलो करते हैं। द मेन बेल्ट विच हैज़ बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स लाइज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो कि मेन बेल्ट है जहाँ पे बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स मिलेंगे वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट में लाई करते हैं। तो ये होते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो कि स्मॉल प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट्स जो कि सॉलिड होते हैं वो पाए जाते हैं सोलर सिस्टम में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीटियोर्स। ये मीटियोर्स क्या है? एवरी नाइट वी सी सम ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। हर रात को हम लोग कभी ना कभी एक ब्राइट स्ट्रीक, एक ब्राइट लाइन देखते हैं स्काई में। दीज आर कॉल्ड मीटियोर्स। मीटियोर्स का और एक नाम भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स। मीटियोर्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। मोस्ट ऑफ देम बर्न अप एंड बिकम गैसेज। मोस्ट ऑफ देम बर्न अप एंड बिकम गैसेज। जब भी ये बर्न कर जाते हैं या फिर टकरा जाते हैं ये गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैस हार्मफुल भी हो सकता है। द लास्ट पॉइंट, व्हेन दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। जब भी ये सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ से टकराते हैं, धरती से टकराते हैं,
इनको मीटियोराइट्स बोला जाता है. सो व्हाट आर मीटियोराइट्स? द मीटियोर्स व्हेन दे हिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर नोन एज मीटियोराइट्स. The last topic of the today's class are the comets. What are the comets? Comets are the huge lumps of snow and rock dust. Whenever they come near sun, they start glowing and develop a long tail. जब वो सन के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तो वो उनमें एक ग्लो आ जाता है और एक लंबी सी टेल की तरह वो दिखते हैं. The most famous comet is the Halley's comet. ये एक कॉमेट का नाम है जो कि काफ़ी फेमस है. ये कॉमेट देखा गया था 1986 में. इट वॉज सीन इन 1986. अब बोला जाता है कि इट विल अपीयर अगेन आफ्टर 76 ईयर्स, यानी कि द नेक्स्ट कॉमेट विल अपीयर आफ्टर 76 ईयर्स. सो इट वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल.